Hello students, today we will study 8th standard history. Second chapter, the name of the chapter is Europe and India. Students, in previous chapter we have studied about different sources of history such as written sources, material sources and oral sources. In this chapter we will see the development according to the development of Europe, how India was developed. We will see all that in this chapter. Let us see the chapter. Students, during the modern period, the various happenings in Europe had its impact on India. What was going on in Europe that impacts on India. Therefore, while studying the period of modern Indian history, when we are studying modern Indian history, we have to study the events or happenings in Europe during this period. In this chapter, we will study the topic period of Renaissance. Just now we have studied that what events were happening in the Europe that was the impact on India. We have to study the events happening in Europe during this period. We will see the period of Renaissance. Renaissance means Sudhar, reformation. In history of Europe, the last phase of medieval period, that is 13th to 16th century, is known as period of Renaissance. Which period was known as period of Renaissance? In history of Europe, the last phase of medieval period. The last phase of medieval period. Medieval period means Madhya Yuga in history, that is 13th to 16th century. This period was known as period of Renaissance. During this period, the field of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman traditions which gave momentum to an overall development. In this period, in the field of art, architecture, philosophy, all these things, there was a revival of Greek and Roman tradition. There was a revival. Revival means ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशंस का रिवाइवल किया गया इंडिया के डेवलपमेंट में भी. ड्यूरिंग द रेनाइसेंस देयर वाज ए चेंज इन द आउटलुक ऑफ ट्रीटिंग ईच अदर एज ए ह्यूमन बीइंग इंस्टेड ऑफ रिलीजन. मैन became the center of all ideologies. Religious reform movement. Student, in this period, religious reform movements also occurs. Old religious ideologies of Roman Catholic Church. The people were against these ideologies. In the church, there were old religious ideologies of Roman Catholic Church and unnecessary rituals. Rituals means चाली रीतियाँ, पद्धति, परंपरा. चर्च का जो विचारधारा था, आइडियोलॉजीज था, वो उसके अपोज में थे लोग, और उनके चर्च के जो अननेसेसरी रिचुअल्स थे उसका अपोज किया लोगों ने. और इसके लिए जो मूवमेंट चालू हुई, द मूवमेंट दैट बिगैन अगेंस्ट इट इज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. चर्च की जो संस्कृति थी, परंपरा थी, अननेसेसरी रिचुअल्स थे और उनकी जो विचारधाराएं थी उसके अपोज में हो गए लोग, और उसके लिए मूवमेंट चालू हुआ. दैट मूवमेंट वाज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. Then geographical discoveries. In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, means in that time it was known as Istanbul, which was the capital of Byzantine Empire. Students, listen carefully. In 1453 AD, Ottoman Turks conquered Constantinople. Conquered means जीतना, कब्जा करना. Which was the capital of Byzantine Empire. Byzantine Empire का जो कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल, उसके ऊपर तुर्क लोगों ने कब्जा किया. The overland trade routes joining Asia and Europe. यूरोप और एशिया को जाने वाले रूट यहाँ से जाते थे कॉन्स्टेंटिनोपल से, थ्रू दिस सिटी. Since the Turks blocked this route, तुर्क लोगों ने इसके ऊपर कब्जा किया और उसको ब्लॉक कर दिया. Therefore, there was a need of finding alternative trade routes.
फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया। यूरोपियन कंट्रीज़ को एशिया में जाने के लिए यहाँ से रास्ता था, कॉन्स्टेंटिनोपल से। जब तुर्क लोगों ने इसको अपने कब्जे में किया तो ये रास्ता बंद कर दिया यहाँ से, इसलिए यूरोपियन लोगों को एशिया में जाने के लिए दूसरे सी रूट्स ढूंढने पड़े। दिस लीड टू अ न्यू फेज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। यहाँ से लोगों ने न्यू सी रूट्स ढूंढना चालू किया। देन अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। In the American War of Independence, what happened that we will see. With the discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent. जब अमेरिका का शोध लगा, अमेरिका डिस्कवर हुआ, तब यूरोपियन कंट्रीज उसके तरफ मुड़ गए, अमेरिका कॉन्टिनेंट की तरफ मुड़ गए। द इम्पीरियल ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज टूक कंट्रोल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ अमेरिका। जैसे यूरोपियन कंट्रीज से इंग्लैंड ने अपने इंडिया में आकर कॉलोनीज बनाए, वैसे कुछ यूरोपियन देशों ने अमेरिका की तरफ मुड़ गए और वहाँ का एरिया अपने कब्जे में कर लिया और वहाँ पर उन्होंने कॉलोनीज बनाए। इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका। जैसे इंग्लैंड ने अपने इंडिया में आकर कॉलोनीज बनाए, बस्तियां बनाए और अपने इंडिया पर कब्जा किया, उसी तरह इंग्लैंड ने अमेरिका में जाकर अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट किनारे पर 13 कॉलोनीज बनाए, 13 कॉलोनीज बनाए। इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेशन ओवर दिस कॉलोनीज। शुरुआत में उनका थोड़ा बहुत डोमिनेशन था उस कॉलोनीज पर, बस्तियों के ऊपर। बट लेटर इंग्लिश पार्लियामेंट laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies. उसके बाद में इंग्लिश पार्लियामेंट ने वहाँ के लोगों के ऊपर कुछ ऑपरेसिव रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बंधन लगाए और उनके ऊपर कुछ टैक्सेस का बर्डन डाला, टैक्सेस लगाए उनके ऊपर। वहाँ के जो कॉलोनीज थे, 13 कॉलोनीज बनाए वहाँ पर। द पीपल इन अमेरिका रिवॉल्टेड अगेंस्ट इट। अमेरिका के जो इनहेबिटेड पीपल थे उनको वो पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके अपोज में रिवॉल्ट किया। इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वार टू सप्रेस दिस कॉलोनीज। इंग्लैंड ने इस आंदोलन को मिटाने के लिए, सप्रेस करने के लिए वार अनाउंस किया। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन एंड फाइनली ओन अगेंस्ट इंग्लैंड। अमेरिका के लीडर थे जॉर्ज वाशिंगटन। उनके लीडरशिप में अमेरिका ने आर्मी ऑर्गेनाइज की, आर्मी यूनाइट की और ये इस लड़ाई में अमेरिका जीत गया इंग्लैंड के अपोज में। दिस इवेंट इज नोन एज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी इवेंट को, इसी घटना को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं। अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विथ अ फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पर अभी न्यू नेशन तैयार हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो 13 कॉलोनीज बनाई थी इंग्लैंड ने, वो पूरी यूनाइट हो गई और उसको नाम दिया गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विथ अ फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पर डेमोक्रेसी चालू हुई, फेडरल गवर्नमेंट चालू हुआ। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी वॉज बॉर्न। यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह से तैयार हुआ। आफ्टर दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। French Revolution is the important event in the European history. In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy. वहाँ पर राजा लोगों का राज्य था और उनका जो राज्य था वो उनके मनमर्जी से चलता था। जमींदारी पद्धति, फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म मीन जमींदारी पद्धति। एंड एस्टेब्लिश, वहाँ पर लोगों ने रिवॉल्ट किया, जमींदारी और राज पद्धति के अपोज में आंदोलन किया और वहाँ पर रिपब्लिक स्थापन किया, डेमोक्रेसी स्थापन की। दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राजा लोगों का जो राज्य था वो अन्यायकारी था, लोगों के ऊपर अन्याय करते थे, हरासमेंट करते थे लोगों का, इसलिए लोगों ने आंदोलन किया और वहाँ पर वो पुरानी पद्धति निकालकर वहाँ पर डेमोक्रेसी चालू की। इस इवेंट को बोलते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। The French Revolution gave to the world the 3 values of liberty, equality and fraternity. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद
पूरी दुनिया को ये 3 वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस मालूम हुआ. लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रैटर्निटी. लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, इक्वेलिटी मीन्स समानता एंड फ्रैटर्निटी मीन्स बंधुता. After that, in the world history among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution have a very important place. In the political revolution, American War of Independence, what we have studied here, American War of Independence and French Revolution were important place in the history. Students, next part of this chapter we will study in the next video, second part. Okay, thank you.